Okay. A very good afternoon to one and all. I, Assistant Professor Prajakta Nivrutti Shingote, would like to welcome you all for a webinar on the effective use of LinkedIn for professional purpose. Dear all, in this 21st century, we can connect to each other simply with one click. Thus, communication and networking becomes inevitable parts of our life. The online platforms like LinkedIn are used these days not only for professional networking but also for career building. Therefore, in order to explore this social networking service in depth, we have Mr. Preetham Singh, who is a personal branding coach and LinkedIn trainer with us. He will enlighten us about the effective use of LinkedIn for professional purpose. So, to begin with the program, I would like to request Principal Dr. K.S. Jain sir to deliver a welcome speech. Hero sir. Yes. Yes, sir. Thank you. Am I audible, Tushar Pawar, Yes, sir. sir? You are audible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Mr. Pritam Singh, sir. Am I audible? Hello? Hello? Mr. Pritam Singh, sir. Am I audible? Hello? Yes, sir. You are audible. Yeah, sir, Mr. Pritam Singh, sir. Our respected Dr. K. Jain, sir, is busy with busy with honorable management about staff selection committee interview. So, on the behalf of Dr. K. Jain, sir, I hello. Tushar Pawar, sir, I am audible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Sir, You you are are audible. audible. Yes, sir. Yeah. Audible. Good afternoon, one and all. Myself, Hirode Ramesh, Principal, on the behalf of KKO College of Pharmacy and KKO College Institute of Pharmacy, Chanduri, I heartily welcome Mr. Pritam Singh, sir, all dear students and staffs. I am very much thankful to our Honorable President, Mr. Balasaheb Wag, respected Professor Bandi sir, Secretary, KK Wag Education Society, Nasik, and respected Dr. K. Jain sir, Pharmacy Coordinator and Principal, KKW COP, Nasik, for their kind supporting to organizing webinar on different topics. Mr. Pritam Singh sir, today's is the fifth number webinar. Before that, we organized 4 webinars on different topics like COVID-19 and immunity, औषध घ्यावे बघून, म्युकरमायकोसिस and SARS-CoV-2 infection, pathogenesis and immunity response. Today, webinar on the effective use of LinkedIn for professional purpose. All of you are aware that about LinkedIn is social networking site. I once again welcome Mr. Pritam Singh sir and request to enlighten our student and staffs. I request Singode madam proceed for further program. Thank you. Singode madam, am I audible? Thank you, Sir, you sir. are audible. Thank you madam. Please proceed for further program. Hiroy sir, I would once again like to request you to virtually felicitate Mr. Preetham Singh. Yeah, yes, sir. Please
accept our felicitation, sir, Mr. Pritam Singh, sir. Please. Yeah, once again, I heartily welcome to you, sir. Welcome, Pritam Singh sir, to our institute. Here, let me familiarize you all with Mr. Pritam Singh. Mr. Pritam Singh is a personal branding coach and LinkedIn trainer. He has trained over 1,000 plus students all over the globe, including students from USA and Lebanon. He has he was invited to speak at prestigious SREL Business School to give a session for PG and students in the esteemed presence of the director and the dean of the institute. He also takes one-on-one counseling sessions on personal branding and networking strategies. He focuses to make students career ready through his training programs on topics such as resume writing, group discussion, interview skills, public speaking, and networking. So, sir, we are extremely enlightened to have you with us. And now, I would like to request Mr. Pritam Singh to begin with his session. Can you hear us, Mr. Pritam Singh, sir? Yes. Am I audible? Yes, you're audible. You can start with your session. Sure. So thank you so much for inviting me. Dr. Hirole sir, the principal of KKWA Polytechnic. That was very kind words, and thank you ma'am for such a brief introduction for me. I'm very humbled by this introduction. So let us begin with the session. I'll just present my screen. Is my screen visible? No, sir. Sir, wait a No? moment. Okay. Yes, sir. Now. Yes, sir. Your screen visible. Okay. It is visible, right? Hello. Yes, sir. Yes, it Your is. screen visible. Okay. Sure. Thank you. So I hope like English is okay for everyone. Like नहीं तो फिर ऐसे होगा कि पूरा मतलब इंग्लिश में हो गया और फिर ऐसे आप लोगों को बस ये लग रहा है कि प्रीतम सिंह बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है. So please let me know which language you all are comfortable with. So हमारा main purpose ये होना चाहिए कि हमें समझ में आए. Language is not much of a barrier. So you can just text me. Chat box में डाल दीजिए कि आप कौन से language के साथ आप comfortable हैं. Sir, it's a humble request. Are you comfortable to talk in Marathi, sir? No, मराठी नहीं, हिंदी चलेगा मुझे. So Hindi I or think English, anything is. Sir, Hindi, mixed English session. mix. Sorry, Hindi or English mix. I can go with any language. Yes, sir. Okay, sure, thank you. So yeah, so इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत में इस कुछ बेहतरीन पंक्तियों से ही करना चाहूँगा. So यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. पूछा चिड़िया को कैसे बनाया ये आशियाना, पूछा चिड़िया को कैसे बनाया ये आशियाना, तो बोली तिनका तिनका सा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका सा उठाना होता है. So
हम लाइफ में यही तिनके को हमें कोई छोटा सा सेशन कर लिया, कोई डिग्री ले ली, कहीं से नॉलेज गेन कर लिया, ऐसे ही हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम करियर में आगे बढ़ते हैं। उसी के लिए हम आज एक ऐसे ही सेशन को अटेंड करने जा रहे हैं जो कि लिंक्डइन मास्टर क्लास। सो मैडम ने मेरे बारे में काफी कुछ ब्रीफ में बता दिया। सो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप रफली कितना टाइम मोबाइल या इंटरनेट पे आप यूटिलाइज करते हैं? अभी तो लेक्चर्स वगैरह का आप छोड़ के बताइएगा, क्योंकि इवन अभी वो भी फोन पे ही होता है, बट रफली आप कितना टाइम सोशल मीडिया पे देते हो? रफली लाइक चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। मुझे ये इंटरैक्टिव चाहिए, आई डोंट वांट कि मैं आया कुछ गड़बड़ किया और आप लोग फिर चले गए, ठीक है सब ये है। सो आप प्लीज लेट अस कीप इट वेरी इंटरैक्टिव, ओके? जस्ट अ सेकंड। हेलो। हाँ, so yeah, so someone is saying that like 6 hours, 2 hours, 3 hours, so roughly हाँ, सो रफली जो मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के रिप्लाई, हम रफली 4 to 5 आवर्स कम से कम हम सोशल मीडिया पे यूज करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि बस 30 से 40 मिनट या 45 मिनट्स आपको अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव बोलूँ और उसकी वजह से आपको करियर में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आपको मिल सकता है, तो आप क्या देने के लिए तैयार हैं? इज इट अ यस और अ नो? व्हाट डू यू से? इट इज ऑब्वियसली अ यस। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग का मतलब हम ये नहीं होता कि बहुत सारे लोगों के से बस कांटेक्ट करें, मतलब मेरे फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स है इसका ये मतलब नहीं कि मेरी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल मेरे फोन के अंदर यहाँ पे 2000 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर सेव है, दैट डज नॉट मीन कि मैं बहुत अच्छा, मेरी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है या नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आप जब सच में लोगों से कनेक्ट करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे एम्पथाइज करते हैं, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आप फिजिकल लेवल पे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके कलीग्स के साथ आपने बात की, आप उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग की, आपके कहीं आपको कभी भी हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प करने के लिए वो तैयार है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब फॉर एग्जांपल कॉलेज में है तो कॉलेज में आप बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हैं। आप अपने कोई सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसे हर बहुत जगह पे नेटवर्किंग की जा सकती है फिजिकल लेवल पे। लेकिन फिजिकल लेवल का जो एक ड्रॉबैक ये है कि कम लोगों से आप नेटवर्क कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिया है। आप अक्रॉस द ग्लोब किसी के साथ भी आप नेटवर्क कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके एक्सपर्टीज का आप फायदा उठा सकते हैं, उनके कनेक्शंस का आप फायदा उठा सकते हैं। सो दिस इज द द बिग पिक्चर अबाउट लिंक्डइन। लिंक्डइन को चालू क्यों किया गया था? लिंक्डइन को ऑल्दो चालू किया गया था 2002 में एज अ जॉब वाला साइट, बट 2016-17 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर किया तो ये मोर, इट इज नाउ मोर ओवर ऑफ अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। सो इट हैज गिवन मी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई शेयर सम एग्जांपल्स जो कि आपको बहुत ज्यादा मजबूर कर देगा, कुछ ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो हम कुछ भी करते हैं तो हमें पहले ये सोचना होता है कि हम लिंक, मतलब फॉर एग्जांपल लिंक्डइन ही क्यों यूज करना है, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम वो क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? सो उसका यही रीजन है कि ये, मतलब इसके ब्रॉडली 4 रीजन है। तो द फर्स्ट वन इज इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। मतलब आपको अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन पे सारे काम एक ही जगह पे कर सकते हैं। देन देयर इज दिस ऑर्गेनिक रीच।
ऑर्गेनिक रीच का मतलब होता है कि बिना पैसे दिए हुए, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो तो आपके जो फॉलोअर्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 400 फॉलोअर्स है तो वहां पे ऑर्गेनिकली आपके स्टोरी को 200 से 250 लोग ही देखेंगे, पूरे 400 के 400 लोग भी नहीं देखेंगे आपके फॉलोअर्स। लेकिन ऑर्गेनिक रीच मतलब होता है कि मैं बिना पैसे दिए हुए अपने कंटेंट को कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर 4000 फॉलोअर्स आज लिंक्डइन के ऊपर है, तो मेरे कंटेंट को डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिदम एंड द काइंड ऑफ कंटेंट, हो सकता है कि वो 10,000 लोगों तक भी पहुंच जाए, हो सकता है वो 20,000 लोगों तक भी पहुंच जाए। सो मुझे आई डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी टू लिंक्डइन फॉर दैट। इवन यहाँ पे आप पैसे दे सकते हैं, आप एड्स चलवा सकते हैं, आप यहाँ पे आप अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं, बट यूजुअली आप बिना पैसे दिए हुए भी करवा सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लिंक्डइन। देन दिस इज द डायनेमिक पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल आपको अगर जॉब चाहिए, आपको इंटर्नशिप चाहिए, सो अगर आपने एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई हुई है, एकदम ऐसे स्मार्ट सा फोटो है, एकदम स्मार्ट सा फोटो है, आप क्या करते हैं, आपने एकदम बढ़िया सा ये प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। जो आपका रिज्यूमे बताता है वो काफी कुछ कम बताता है, और जो ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप किसके साथ कनेक्ट करते हो, आपके थॉट्स एग्जैक्टली क्या है, वो आपके रिज्यूमे में नहीं रिफ्लेक्ट कर सकता, वो आपके लिंक्डइन पे ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। देन there's this fourth thing, this is called personal branding। उसको मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ब्रांड मैटर्स। सो आप सभी ने को ये चीजें पता होगी, लाइक हम कॉलगेट बोलते हैं, कुरकुरे, ये चीजें हमें मतलब फॉर एग्जांपल हमको तो इनके जिंगल्स भी याद होंगे। फॉर एग्जांपल वॉशिंग पाउडर निरमा। सो वॉशिंग पाउडर निरमा हमें किसी ने बताया नहीं कि ये वॉशिंग पाउडर निरमा, लेकिन वो जो जिंगल है हमारे कानों के ऊपर इतना ज्यादा बम्बार्ड हुआ है कि अब हमें वो जिंगल से प्यार हो गया काइंड, राइट। वैसे ही कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा है। जूते चाहिए तो एडिडास के चाहिए, नाइकी के चाहिए। कपड़े चाहिए तो हमें किसके चाहिए, स्पार्की के चाहिए, लिवाइस के चाहिए। सो दिस इज मतलब ब्रांड हमारे साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। सो जब हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम ब्रांड का ख्याल रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ब्रांडिंग के एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं करते होंगे, देखते हैं। अब हम पर्सनली स्पेसिफिकली बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। सो ये पर्सनल ब्रांडिंग नाम की चिड़िया है क्या, राइट। सो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अभी पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह सब भूल जाइए, राइट। तो सबसे पहले आपको किनका फोटो दिख रहा है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। सो आपको कौन से ज्यादा मतलब आप अगर आपको बोलूं कि ये फोटो दिखाया आपको, तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे, लाइक वो बहुत एंथुसियास्टिक आदमी है, टेक सेवी है, टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे लीडर है, राइट। आपको वही स्टीव जॉब्स का अगर फोटो दिखाया तो उनके बारे में क्रिएटिविटी की बातें करेंगे, हम लीडरशिप की बातें करेंगे, उनके फोकस के बारे में बात करेंगे, राइट। वहीं अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो उनके क्रिकेट के बारे में, द काइंड ऑफ डिसिप्लिन ही यूज, हम उनकी बातें करेंगे। हम क्यों ना, मतलब नरेंद्र मोदी के आने के टाइम में ये क्यों नहीं बोलता हूँ बहुत स्पोर्टी आदमी है। कोई रीजन है इसका? द रीजन इज ओनली दिस कि हमें उनके बारे में सोचने के लिए वैसे मजबूर किया गया। मजबूर मतलब किसी ने मुझे ऐसे नहीं कि चाकू दिया और फिर बोला कि नहीं अभी तक तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा, नहीं। दिस इज लाइक हमें वैसे नर्चर किया गया। हम रोज आए दिन टीवी पे देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास। सो हमें टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उनके मन के बात के थ्रू, सो हमें ऐसे नर्चर किया गया हमारे सबकॉन्शियस को कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही हैं। तो सिमिलरली क्या हम, मतलब एक कॉमन आदमी ये नहीं कर सकता? यस कर सकता है, ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकता, बट छोटे लेवल पे कर सकता है। जैसे कि हम सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके हम ये काम कर सकते हैं। ये तो बड़ी बड़ी बातें होंगी ऑब्वियसली, लाइक नरेंद्र मोदी, स्टीव जॉब्स, ये सब बड़ी बड़ी बातें होंगी। दिस ये मेरे सीनियर है। तो जैसे कि आपको मैडम ने बोला कि मैं एक फाइनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ केकेवाट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये मेरे सीनियर है, ही वाज माय सुपर सीनियर आई सपोज। तो उन्होंने 2 टेड टॉक दिया। सो आई होप यू नो टेड टॉक, लाइक यू नो द पीपल हु ब्रिंग रिवोल्यूशनरी चेंज इन द सोसाइटी, हु आर लाइक यू नो द चेंज मेकर्स, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो एक टेड टॉक दे। तो वो उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से, उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग को यूज करके 2 बार टेड टॉक दिया। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। सो जस्ट इमेजिन एक टीयर 2 सिटी, मतलब नासिक मेट्रो सिटी भी नहीं है, एक टीयर 2 सिटी का आदमी
22-23 साल की उम्र में अगर 2 टेक टॉक दे सकता है इस प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ताकत है। बस जरूरत क्या है, किस चीज की है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो एक पर्सनल ब्रांड क्या है? एक पर्सनल ब्रांड होता है कि जो आपके इमेज के बारे में बात करे, आपके मिशन के बारे में बात करे, आपके वैल्यूज के बारे में बात करे, आपके विजन के बारे में बात करे। फॉर एग्जाम्पल, आई फील मेरी जो इमेज है वो एक लीडर की तरह आपके सामने आए। मेरा जो मिशन है, आई वांट टू स्टार्ट अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रूरल इंडिया, दैट इज व्हाट आई परसीव। सो मैं मेरे मिशन को, मेरे वैल्यूज को, मेरे विजन को आपके सामने रखूंगा। कैसे? सोशल मीडिया को यूज करके। जब मैं लोगों से मिलूंगा तो मैं ऑब्वियसली मैं इन्हीं चीजों के बारे में उनसे बात करूंगा। आप लोग ये सारे पर्सनालिटीज को अगर देखें तो ऑब्वियसली दीज आर वेरी फेमस पीपल। ओप्रा विनफ्रे, जय शेट्टी, रतन टाटा, Bill Gates. So these are all big people. I mean, these all people have a very different and different personal brand, right? So personal branding के ये 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। सो द फर्स्ट वन इज जेन्युइन। इट शुड बी जेन्युइन। ऐसे नहीं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है या फिर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे फार्मेसी पसंद नहीं, राइट? मुझे बीइंग फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, मुझे फार्मेसी के बारे में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। और जस्ट बिकॉज मैंने देखा कि नहीं फार्मेसी के बिकॉज दिस इज लॉकडाउन और ये सब चल रहा है, फार्मेसी को लोग ज्यादा पसंद मतलब पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा ढूंढ रहे हैं, तो मैं जाऊँ और बोलूँ कि नहीं मैं फार्मेसी एंथुसियास्ट हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो काम नहीं करेगा। You will have to be genuine। अगर आपको फार्मेसी पसंद है, आपको मार्केटिंग पसंद है, आपको सेल्स पसंद है, आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, तो whatever it is, be genuine। Then the next step is story। You should always have a story with it। मतलब हम कभी मतलब हम स्टेटमेंट्स में बात नहीं करते हैं। इवन हम अगर कुछ याद करते हैं तो हम स्टोरीज के फॉर्म में याद करते हैं। अच्छा मैं उससे यहाँ पे मिला था, अच्छा मैं उससे यहाँ पे मिला था, हमने ये की थी, हमने ये मस्ती की थी। हमारी मेमोरी हम वैसे डिजाइन की गई है, राइट? The third step is failure। आप इस प्रोसेस में आए हो तो आप फेल होगे, इट इज 100% श्योर। बट जीतेगा वही जो फेल होने के बाद फिर से खड़ा होगा, फेल होने के बाद फिर से खड़ा होगा, फिर से गिरेगा, फिर से खड़ा होगा। सो दिस इज वेरी बाउंड टू हैपन एंड डू नॉट मतलब आपको पैनिक नहीं होना है कि अच्छा अरे यार मैं फेल हो गया, छोड़ देते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह अपने से नहीं होगा या लिंक्डइन अपने से नहीं होगा। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, जैसे बांकी भैया का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो आप वैसे जो सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं इस फील्ड के अंदर, आपको उनके एग्जांपल से सीखना चाहिए कि इवन उनके साथ फेलियर्स हुए थे, उन्होंने कैसे अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश किया। तो these are 5 basic directive principles of personal branding। Then these are the 3 words, you'll always have to establish yourself with these 3 words। For example, I feel that I'm a leader, I'm a public speaker, I'm an educationalist। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे इन नामों से जानें। So write 3 words for yourself जो कि आपके goals को describe करता है। Like what do you want to do? Then these are the 3 values which is within you। ऐसे नहीं कि आपके बाहर से आएंगे, these are within you। For example, in my case it is honesty, empathy and integrity। So these are very important thing। Like आपको आपके जो 3 goals है वो आपको लिखते हैं और आपकी जो 3 values है वो आपको लिखते हैं। These will be very decisive in describing your personal brand। Then you can also have a board of directors। For example, मैंने अगर सोचा कि मैं 10,000 लोगों को बाय एंड ऑफ 2021 मैं 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, तो मैं ये गोल मैं इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो हम अपने पर्सनल ब्रांड के लिए भी ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रख सकते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कौन से? ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, बट दीज आर पीपल हु आर योर वेल विशर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो आपके बारे में मतलब होता है ना कि उनको बताए और बोले हे झूठ बोल रहा है, 10,000 लोग पॉसिबल ही नहीं है, आपको डिमोटिवेट ना करें। दे आर योर वेल विशर्स, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रख सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब हम कोर लिंक्डइन में आ गए हैं। मतलब हम पर्सनल ब्रांडिंग का एक एस्पेक्ट, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग हम काफी सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। लेकिन हम लिंक्डइन को हमने चूज किया क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो हमारे जो मुद्दे की बात है एक लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए, वो मोटा मोटा हम 5 चीजें पे बात करते हैं। पहला है प्रोफाइल पिक्चर,
Next is your cover picture, then comes your headline, then your about section, and then comes बाकी प्रोफाइल, बाकी जो प्रोफाइल के अंदर होता है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. इवन आई विल बी शेयरिंग यू माय पर्सनल प्रोफाइल, और उसमें आपको क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, आपको सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. सो प्रोफाइल पिक्चर आपका जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप नूडल्स खरीदने जाते हैं, राइट, तो आप सबसे पहले ये नहीं देखते कि अंदर क्या कंटेंट, क्या है कंटेंट, किसके अंदर ज्यादा मिल रहा है, किसके अंदर कम मिल रहा है. सबसे पहले जो दूर से आपको जो दिखता है वो ये लगता है कि इसकी पैकेजिंग सबसे तगड़ी है, राइट. पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में. सो आज के जमाने में जब आप अपना पर्सनल ब्रांड प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है दैट विल बी प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल रोल एवर. सो इसलिए इट इज सजेस्टेड दैट आपको मतलब एक प्रोफाइल पिक्चर में क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए. सो फोटोग्राफर ट्राई की आप खुद से फोटो ना निकालें. आप इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करें, बट आप किसी फ्रेंड को बोल सकते हैं, आप अपने किसी को बोल सकते हैं कि आपके लिए फोटो क्लिक करके दे. कोई कोई बोलता नहीं मैं तो सेल्फी खींच लूंगा और फिर ये ऐसा लगेगा ही नहीं कि सेल्फी, बट क्यों मतलब ये करना, राइट. देन कम्स योर बैकग्राउंड. आपका बैकग्राउंड काफी सिंपल होना चाहिए. मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ पीछे कुछ फंकी चल रहा है और फिर इससे काफी सारा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है. देन कम्स योर क्लोथिंग. आपके कपड़े ऐसे ही होने चाहिए जो कि आप अपने वर्क प्लेस पे, आप अपने वर्क प्लेस पे जैसे कपड़े पहन के जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कम्स योर स्माइल. बहुत एक वार्म स्माइल हमेशा हेल्पफुल होता है. नहीं तो ऐसे होता है कि लोग आपसे मतलब कनेक्ट करना नहीं चाहेंगे, मतलब या फिर हो सकता है वो काफी सोचे कि यार ये आदमी पता नहीं कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. लेकिन अगर आप फ्रेंडली, आप ऐसे दिखा रहे हैं एक स्माइल के साथ कि आप फ्रेंडली हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे, आपकी मदद करना चाहेंगे, राइट. देन कम्स योर, इट शुड बी हाई रेजोल्यूशन. ऐसा नहीं कि मतलब बहुत खराब क्वालिटी की है. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है योर प्रोफाइल पिक्चर. देन कम्स योर कवर पिक्चर. बहुत सारे लोगों को अगर आपने देखा होगा, आप में से भी अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपना कवर पिक्चर अभी तक नहीं बनाया होगा. तो यहाँ पे कवर पिक्चर या बैनर बोल लीजिए, यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर हम बैनर टर्म यूज करते हैं. तो बैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ऑलमोस्ट 20 to 30% जो आपका जो एरिया होता है वो आपका बैनर होता है, राइट. और अगर आप बैनर पे अगर सही चीज अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है. तो इसीलिए कुछ सैंपल है बैनर के, वो आपको दिखा रहा हूँ. जैसे कि ये वानकी कटारिया का बैनर है. उसमें सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये आप मतलब होता है ना कि जब कोई आपका प्रोफाइल विजिट करेगा तो सबसे पहले आपको उसको यही चीज दिखने वाली है. तो आप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को हाईलाइट करें उनके सामने कि आप किस चीज में बेस्ट हो. फॉर एग्जाम्पल वानकी कटारिया की बात करें तो उनके बारे में जब बेस्ट थिंग इज लाइक ही हैज बीन published and featured in very big magazines like Forbes, Entrepreneur, HuffPost. तो उसको उन्होंने obviously बहुत अच्छे तरह से highlight किया है. Then come like और उन्होंने बहुत जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो achievements हैं उनकी, उन्होंने उस चीज को highlight किया है. Then comes this, he is Mr. Piyush Kukreja और उन्होंने वो एक podcast host करते हैं. उनका नाम है The Piyush Kukreja Show. तो all he wants to people to know about him is that he is a podcaster. He runs a show. तो शायद उनका जो बिजनेस है, उनके जो अर्निंग्स है वहां से आते होंगे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो लोग उनके पॉडकास्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें. सो इट इज नॉट जस्ट मतलब दीज आर जस्ट फॉर रेफरेंस. आप क्या चाहते हो आपके आपके पर्सनल ब्रांड के बारे में, आप क्या चाहते हो, आपकी जो गोल है वो क्या है. आप एक बिजनेस रन करते हो, आप अभी एक जॉब सीकर हो, तो उस हिसाब से आप ये कर सकते हो, आप डिजाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ही इज मिस्टर नील पटेल, ऑब्वियसली लाइक यू नो ही इज द बिग किंग ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग. सो उनके बारे में जो बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उनको उन्होंने डिस्प्ले किया है. धैर्य गंगानी नाम की एक लेडी है, उन्होंने वो क्या करती है उस चीजों इंपॉर्टेंट चीजों को बस यहाँ पे किया है. अब आप पूछोगे कि ये बनाया कैसे जाता है, तो एक बहुत ही ज्यादा सिंपल टूल है canva.com. canva.com. आप canva.com पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए लिंक्डइन बैनर. काफी सारे प्रोफेशनल टेम्पलेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. आप वहां पे चीजों को एडिट भी कर सकते हो और आप उसको रिट्रीव करके आप अपने डायरेक्टली उसको एज अ बैनर यूज कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर. इट इज वेरी यूजफुल टूल. इट इज कॉल्ड एज canva.com. ओके. तो
Yes. I hope it is visible, right? Is my screen visible? Yes, sir, it is visible. Yeah, thank you. So this is how a LinkedIn profile looks like. So this is the profile picture. Here comes your LinkedIn banner. Then this is your headline, right? This is very important because आपके जो keywords आप यहाँ पे input करने वाले हो वो searchable होता है. उसके जो keywords हैं वो आप अगर Google पे भी search करोगे तो हो सकता है कि Google आपके प्रोफाइल को वहाँ पे सजेस्ट करे और आपका जो visibility है LinkedIn पे Google पे वो ज्यादा हो. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे अच्छे कीवर्ड्स जो आपको रिप्रेजेंट करता है आप उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो एंड इट इज वेरी हेल्पफुल. ओके. सो देन द नेक्स्ट कम्स इज योर अबाउट सेक्शन. सो यहाँ पे आपके पास वर्ड लिमिट है 120 कैरेक्टर्स ही आप यहाँ पे डाल सकते हो. सो दिस इज लाइक यू नो दिस हैज टू बी वेरी क्रिस्प. आप इसके अंदर बहुत ज्यादा राम कहानी नहीं लिख सकते हो. आप यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प, वेरी ऑथेंटिक. देन कम्स योर अबाउट सेक्शन. अबाउट सेक्शन में आप पूरी कहानी लिख सकते हो. हु यू आर, आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, लाइक वट एवर इट इज. आप क्या चाहते हो कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आप आप लोगों को क्यों मतलब आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हो. तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो इन द अबाउट सेक्शन. सो दिस इज आई वांटेड टू शो यू लाइक व्हाट एग्जैक्टली हेडलाइन इज. तो हेडलाइन के बारे में आप क्या लिखेंगे. तो हेडलाइन के अंदर आप अपने ऑडियंस के बारे में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन माय केस माय ऑडियंस इज मोस्टली आई केटर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टूडेंट्स. तो मेरे वहाँ पे एक ऑडियंस को मैं कौन से ऑडियंस को केटर कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है. अवॉइड यूज ऑफ जार्गन. फॉर एग्जांपल अगर कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई जार्गन है, एक कॉमन वर्ड है, तो फिर हो सकता है कि कॉमन वर्ड में जो नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड है उसको वो वर्ड ही ना पता चले, राइट. तो अवॉइड यूज ऑफ जार्गन. वैल्यू प्रोपोजिशन, लाइक आपको ये दिखाना होगा कि आपको लोग क्यों, आप क्या वैल्यू लोगों के लाइफ में ऐड कर सकते हो. या फॉर एग्जांपल आप अगर एक फार्मासिस्ट हो या फिर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आप किस चीज को मतलब आप जॉब सीख कर रहे हो, आप बिजनेस हो, आप फ्रीलांसर हो, वो सारी चीजें आप अपने हेडलाइन के अंदर डाल सकते हो. सो हेडलाइन में क्या एक कुछ सैंपल हेडलाइंस है जो थोड़े से मतलब कैची भी होने चाहिए. यहाँ पे देखो जैसे कि एकदम क्रिस्प है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं कि मेंटोरशिप हेल्प करता है, 20+ इंटर्नशिप्स किया हुआ है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, पब्लिक स्पीकर, 8+ पॉडकास्ट एंड कंटेंट क्रिएटर. एकदम क्रिस्प. आप जो भी हो बस एकदम बता दो ऐसे लड़ने से. देन इट माइट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब जैसे कि एक कंटेंट राइटर है उन्होंने ऐसे बता दिया कि आप अगर मुझे काटोगे तो फिर मुझे मेरे अंदर से कंटेंट निकलेगा. स्टोरी टेलर फॉर ब्रांड. सो यू कैन बी वेरी मतलब क्रिस्प एंड वेरी साउंड विद दिस थिंग. देन कम्स योर अबाउट सेक्शन जो कि मैंने बताया जहाँ कि आप पूरी राम कहानी बता सकते हो. सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू स्टार्ट कैची. टेल पीपल हु यू आर, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड लिमिट इज मोर. आपके अंदर यहाँ पे 1200 वर्ड्स 1300 वर्ड्स आप लिख सकते हो यहाँ पे. तो आपको लोगों ने अगर अपना इंटरेस्ट खो दिया आपके कंटेंट से तो वो किसी और प्रोफाइल पे चले जाएंगे. तो हो सकता है कि आगे आपको कुछ फायदा होने वाला था वो अब नहीं होगा. तो यू नीड टू बी वेरी कुछ कैची आप फ्रेज यूज करो, कुछ छोटी सी स्टोरी डाल दो आपके बारे में. ऐसे कुछ तो भी एक थोड़ा इनोवेटिव कर सकते हो. उसके बाद टेल पीपल हु यू आर. आप एक स्टूडेंट हो, आप सीईओ, आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, व्हाटएवर इट इज. देन आपके हॉबीज क्या है, आप क्या सर्विसेज दे सकते हो लोगों को. एंड देन कम्स योर कॉल टू एक्शन. कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि लोग आपसे क्यों कनेक्ट करें. ठीक है. नेक्स्ट कम्स योर रेस्ट ऑफ द प्रोफाइल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जब इसकी बात करते हो, आप जब लिंक्डइन प्रोफाइल की बात करते हो तो आपका मैंने बोला था कि एक ये डायनामिक पोर्टफोलियो है. रिज्यूमे आपका स्टैटिक है लेकिन दिस लिंक्डइन इज वेरी डायनामिक इन नेचर. सो यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में बता सकते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब मेंशन करते हैं बट आपको क्या एक्स्ट्रा मेंशन करना है जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आपने वहाँ पे क्या किया. अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसका सैंपल भी अभी दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में. Then comes your skills, recommendations and accomplishments. हाँ, yes. So I told you यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन होता है.
तो दीज आर व्हाट एक्सपीरियंस आई हैड। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि बस यहाँ पे लिख देते हैं कि आई वाज द चार्टर प्रेसिडेंट और रोटरा क्लब ऑफ नासिक 9 इयर्स और ये मैंने इतना इतना किया है। लेकिन आपको क्या एक्स्ट्रा करना है इज यू नीड टू टेल पीपल व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन इन दैट पोजीशन। आपने क्या क्या किया, आपने क्या सीखा वहां से, इवन दीज आर वेरी हेल्प, आपने क्या अचीव किया वहां पे। तो इसकी वजह से जो सामने वाला बंदा है उसको समझता है कि आप कितने ऑथेंटिक हो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एन इंटर्न, तो वो उस इंटर्नशिप के अंदर मैंने क्या किया, मैं वो चीजें भी एकदम आपको डिटेल में वहां पे लिखना चाहिए। देन कम्स माई एजुकेशन। यस, सो एजुकेशन में भी मैंने अपना डाला है कि मैं यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, मुझे ये अचीवमेंट्स मिले, वट एवर इट इज, वो आप भी लिख सकते हो। देन देयर इज दिस आपकी जो वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है आप वो लिख सकते हो। आपकी जो स्किल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 48 टू 50 स्किल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वो स्किल्स आपको इंडोर्स किया जा सकता है। इंडोर्स करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को बोलते हो कि अच्छा, फॉर एग्जांपल आप आपके कलीग्स जो होते हैं आप उन कलीग्स को बोल सकते हो कि यार आप ऑल्दो यू नो कि मैं फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, तो क्यों ना आप मेरे स्किल को एंडोर्स कर दो। तो इसकी वजह से ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई कि प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, लेकिन बस प्रोफाइल बना दे तो किससे काम हो गया? द आंसर इज नो। बस प्रोफाइल बनाने से कुछ नहीं होगा। इट इज एज गुड एज अ सिंपल पीस ऑफ पेपर या फिर एक छोटा सा ये प्रोफाइल, तो उससे नहीं होगा। अब हमें ड्राइव करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोफाइल तक। सो ये कैसे किया जाता है? दिस इज डन बाई फ्यू स्ट्रेटेजीज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। पहली काम है कि आप कमेंट कर सकते हो लोगों के ऊपर, मतलब होता है ना कि आप दूसरे के आपकी जो फीड होगी उस फीड के ऊपर बहुत सारे लोग नए कंटेंट डालेंगे, तो आप लोगों के कंटेंट के ऊपर कमेंट करो। कमेंट करने से क्या होता है? कमेंट करने से विजिबिलिटी बढ़ती है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर आपके प्रोफाइल पे पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज कन्वर्सेशन। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप नए नए लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज आपकी एक्सपर्टीज दिख के आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंटिन्यूसली अगर पोस्टल ब्रांडिंग के बारे में बात करता हूँ, कंटिन्यूसली पोस्टल ब्रांडिंग के बारे में बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है पोस्टल ब्रांडिंग के बारे में, तो क्यों ना अपने पोस्टल ब्रांडिंग के लिए मैं इनसे काउंसलिंग ले लूँ या इनका कोई एक कोर्स है तो मैं वो कोर्स खरीद लूँ, तो आपको फायदा उस चीज का होगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फार्मेसी के बारे में बहुत मतलब नए नए मेडिसिन के बारे में, नए नए रिसर्च के बारे में बहुत ज्यादा पुट कर रहा हूँ, तो हो सकता है किसी मतलब कोई बड़े कंपनी के जैसे अल्केम हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, तो किसी एम्प्लॉय, वहाँ के एम्प्लॉय की नजर अगर मेरे प्रोफाइल पे पड़ी, यार ये बंदा कहीं ना कहीं मुझे काम आ सकता है, तो अगर ऐसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ और आपको मे भी क्या पता कि वो आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है इस रूप में, एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी स्प्रेड होता है। सो व्हाट टू कमेंट। अब ये तो बता दिया प्रीतम सर ने कि कमेंट करना है, लेकिन कमेंट क्या करना है? कमेंट करना है आपके ओपिनियन। लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोविड-19 के मतलब फॉर एग्जांपल ब्लैक फंगस का कोई मेडिसिन है, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन चल रहा है और यू हैव सम नॉलेज अबाउट इट और व्हाट यू फील अबाउट दैट टॉपिक, तो आप वो आप अपना ओपिनियन वहां पे रख सकते हो। तो वहां भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि कुछ ना कुछ डिस्कशन लोगों के साथ चालू हो जाए। देन कम्स कि आप लोगों को टैग कर सकते हो वहां पे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व हो। एक्सपीरियंस, मेंशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस। आपको आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ पहले हुआ है कोई एक्सपीरियंस, तो आप वो शेयर कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक सेंस। मतलब बस ये नहीं कि थैंक यू, हेलो, गुड आफ्टरनून, इट इज वेरी गुड, ऐसे एकदम मीनिंगलेस चीजें नहीं। कमेंट करना है, लेकिन कमेंट तभी करना है जब कि आप कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हो उस पूरे कॉन्वर्सेशन में या पूरे कंटेंट के ऊपर, राइट? देन दिस इज द थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको ये चीज आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी एंड आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। एंड इट इज कि आप जब लोगों को मैसेज करते हो, तो फॉर एग्जांपल कोई अगर मैनेजर है एल्केम लैब्स का, एल्केम का, और आपने उसको कमेंट किया कि सर मुझे मुझे एक इंटर्नशिप चाहिए,
तो ऑब्वियसली आईकेम के सीईओ हैं या फिर आईकेम के कोई बड़े मैनेजर है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके सारे मैसेजेस को रिप्लाई करें। सो यू नीड टू बी वेरी क्रिस्प, मतलब ऐसे लंबे लंबे आप अगर बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, तो आपके उस गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करने के लिए वो नहीं रुके हुए वहां पे। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड कि आप कैसे एक मैसेज करते हो। सो यू नीड टू, ये सिंटैक्स आप ले लीजिए, आप, मैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका एक ये स्क्रीनशॉट, आपका ये सिंटैक्स होना चाहिए कि पहले सैल्यूटेशन, हेलो, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर इट इज, रिस्पेक्टेड सर, देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप क्या हो, आप क्या करना चाहते हो, लाइक देन आप क्यों ये मैसेज लिख रहे हो, एंड देन रैप इट अप एंड से थैंक यू। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ एंड मैं एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देखना चाहता हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर है आपके पास आपकी कंपनी में, तो प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड क्रिस्प मैसेज। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप अगर ये ऐसे हो सकता है कि मैं अगर एज अ मैं पर्सनल ब्रांडिंग कोच हूँ और ट्रेनर हूँ और मुझे नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए ऑब्वियसली, तो अगर मैं किसी का कंटेंट मुझे अच्छा लगता है तो अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है। अगर मैं आया और आपकी तारीफ कर दी तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा। सो आप भी लोगों की तारीफ कर सकते हो। अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा बाहर में और आपको लगता है कि नहीं इसकी तो तारीफ करनी ही चाहिए, तो आप ऑब्वियसली ये कीजिए। तो ये जो फॉर्मेट है आप इसका यूज कर सकते हैं। देन कम्स व्हाट आर द डूज, आपको क्या करना चाहिए। आप वॉइस मैसेज का यूज कर सकते हैं, आप फॉलो अप ले सकते हैं, लाइक हमेशा, लाइक यू नो, ऐसे, बिकॉज आप बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को आप मैसेज करने वाले हो, तो यू ऑब्वियसली देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपका मैसेज मिस हो जाए। वो आप हो सकता है कि विद इन 2 दिन 3 दिन के बाद आप एक फॉलो अप मैसेज डाल सकते हो। देन आप अगर कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हो या बहुत सारे आपके कलीग्स के साथ कनेक्टेड हो एंड यू नो दैट यू हैव सम ई बुक, या फिर आपके पास कुछ, आपको पता चला कि कुछ एक अच्छा वेबिनार आ रहा है और वो फ्री में है, तो आप क्यों ना उनके साथ भी शेयर करो। तो उनको लगेगा कि ऑब्वियसली दिस पर्सन फील्स फॉर मी, उनको लगता है कि ये मेरे ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, करना चाहता है, एंड ट्राई टू ऐड वैल्यू टू देम। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये तो बहुत ऐसे यू नो जनरलाइज बातें होगी कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब हम बातें करते हैं कि हमें कंटेंट बनाना है, राइट, हमें कंटेंट बनाना है। तो कंटेंट बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट कैसे बनाए। कंटेंट के ऐसे आइडियाज तो ऐसे नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, तो कंटेंट के आइडियाज आएंगे कहाँ से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, आप ऑब्वियसली आप सब, I know you are very attentive right now and you're very excited to learn more about this. So आप कंटेंट कहाँ से ला सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आप, जैसे कि आपने ऐसे कुछ तो वेबिनार अटेंड किया, कोई सेमिनार अटेंड किया, तो आप उसके बारे में शेयर कर सकते हो कि मैं यहाँ यहाँ गया था, ये स्पीकर थे और इन्होंने ऐसे ऐसे बातें की। तो फॉर एग्जाम्पल इस सेशन के बारे में भी आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेंडिंग, तभी क्या ट्रेंड कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट में ट्रेंड हो रहा है कि द सेकंड वेव इज अबाउट यू नो डिक्लाइन, तो आप उसके बारे में कुछ बात कर सकते हो क्या। या फिर सोशल मीडिया को बैन करने की बातें चल रही थी इंडिया में, फेसबुक, ट्विटर को, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। ऐसे जो ट्रेंडिंग चीज के बारे में एक फायदा होता है कि उसके बारे में आपको पुश करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी वेरी ईगर टू नो अबाउट इट। अगर आपने लिखा तो आपका कंटेंट ऑलरेडी ऐसे ही चल जाएगा, मतलब चल पड़ेगा। ये बात हुई थी बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है कि लोगों को ऑलरेडी चाहिए वो कंटेंट, आपने दे दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स इज योर पर्सनल स्टोरीज। मतलब हम बचपन से एक स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, देन वी माइट बी अ वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत सारे कलीग्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिससे कि हमने कुछ सीखा है। तो आप वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स सम क्रेजी आइडियाज। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि फार्मेसी एक साइन वेव है, मतलब दिस इज सो वियर्ड, मतलब फार्मेसी का लाइफ ऑफ अ फार्मासिस्ट इज जस्ट लाइक अ साइन वेव, मतलब ऊपर नीचे बहुत सारे अप डाउन है आपके लाइफ में। सो ऐसा सुनने में तो बहुत वेग लगता है, बट अगर आपने उस टॉपिक के नीचे बहुत मतलब ऐसे रिलेवेंट लाइंस यूज किए, रिलेवेंट कंटेंट यूज किया, तो फिर बंदे को लगेगा नहीं यार ये बंदा सही बोल रहा है, राइट। तो आप ये कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपके पास फिर भी कंटेंट नहीं मिल रहा है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो कंटेंट के लिए आप कोरा नाम का ऐप है, रेडिट नाम का ऐप है, मीडियम है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां से कि आप कंटेंट ले सकते हो। कंटेंट मतलब वहां से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ऑब्वियसली इट इज इलीगल, बट आप
एक बेसिक आउटलाइन आप वहां से एक ले सकते हो, और उसके बाद फिर आप अपने फ्रेमिंग्स, आप अपने लर्निंग्स डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। या सो आई जस्ट शो यू माय प्रोफाइल फॉर अ व्हाइल। यस, सो दीज आर समथिंग जो कि उस प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं था। यहाँ पे आपका स्किल्स और एंडोर्समेंट सेक्शन आता है, तो आपको अपने सारे स्किल्स मेंशन करने हैं जो भी आपको लगता है, मे बी इंटरपर्सनल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल, आपकी टीम लीडरशिप स्किल्स, वट एवर इट इज आप सारे डाल सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल इन माई केस इट इज बिजनेस नेटवर्किंग, पर्सनल ब्रांडिंग, तो ये कर सकते हो। और आप लोगों को एंडोर्समेंट के लिए हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। Then comes your recommendation section. Recommendation का section, recommendation कौन दे सकते हैं? आपके colleagues दे सकते हैं, आपके friends दे सकते हैं, आपके सीनियर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे कॉलेज के प्रोफेसर है और उनको लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा कैटिया और क्रियो में डिजाइनिंग कर लेता हूँ मैकेनिकल पार्ट्स के, तो वो मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि यार ये सो एंड सो बंदा है और नाउ ही कैन हेल्प मी। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आपको करना कैसे है वो मैं बताता हूँ। यू कैन आस्क फॉर रिकमेंडेशन, यहाँ पे आपको दबाना है, ठीक है। या सो आप किसको रिकमेंडेशन मांगना चाहते हो? मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ कि रैंकी, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये मिलता है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किन से रिकमेंडेशन मांगना चाहते हो, और उसके बाद फिर आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप उनसे एक पर्सनल नोट डाल सकते हो कि सर आपके साथ मैंने ऐसे ऐसे काम किया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे लिए एक रिकमेंडेशन लिखें। तो मोस्टली पीपल विल राइट फॉर यू, अगर आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे हैं तो, ठीक है। आपको ये करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। देन कम्स योर रिकमेंडेशन सेक्शन, then comes your skills or endorsement. It is helpful, okay. And now I tell you the most important thing कि networking किया कैसे जाता है, right? अभी आप लोग मोस्टली आई डोंट नो आप लोग फार्मेसी से बैकग्राउंड से, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको लिंक्डइन का यूज आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया अल्केम लैब्स व्हिच इज लाइक वेरी गुड फार्मेसी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पीपल वाले जो सेक्शन है वहां पे जा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको राइट फ्रॉम सीईओज, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, आपको सारे लोगों के प्रोफाइल्स यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, जनरल मैनेजर। सो आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे, और कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट करने का स्ट्रैटेजी होता है। कनेक्ट करना एक होता है कि डायरेक्टली आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, और एक होता है कि पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। तो पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट के अंदर मैं फॉर एग्जांपल मुझे इनके साथ कनेक्ट करना है, पीयूष मित्तल जी के साथ मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कनेक्ट बटन पे दबाऊंगा, एंड देन आफ्टर दिस देयर इज दिस ऑप्शन कि मैं एक नोट ऐड करूं या फिर डायरेक्टली सेंड कर दूं। अगर मैं डायरेक्टली सेंड करता हूं तो उनको बस ये देखेगा कि प्रीतम सिंह वांट्स टू कनेक्ट, लेकिन उनको क्या पता कि मैं क्यों कनेक्ट करना चाहता हूँ, उनको बस ऐसे ही फालतू का कनेक्शन तो नहीं चाहिए। तो मैं ये कर सकता हूँ कि लाइक आई वुड लाइक टू ऐड अ नोट कि पीयूष जी